the feet of Christ. They said, why should we waste such a lot of gold? We can sell it and give it to the poor. Then Christ said, now see what he said, that Christ himself has said these words, and if they are depicted the same way, just see the meaning of what you should do. He said that these poor are forever, but I am for a short time. See? How clearly he has said that there is no philosophical involved. But people take, you see, the other meaning, I don't know from where you get the other meaning that you must look after the poor. That's not your job at all. All right, Uncle? That's not your job to look after the poor. What we have to work out in the middle, by which we can put the right and left, both the back. We have to be in the middle. When we are in the middle course, we first of all settle down ourselves actually, and then the left and right can be encouraged. The poor and the rich. The overrich are horrid. Smoke, drink, I mean, they are wretched. Gambling, this, that, all sorts of things they do. They waste their life, they don't know how to face themselves. They are in the worst possible way. And the poor are another class, labor class and all. So you have to think of the concept. But how? You yourself have the best. Pull all of it. First solution has to come in the center. All right. So this is it. That when you start doing your philanthropy first, you cannot do it. Of course, I mean, poor is all right. In Indian villages, I can go. But very poor, they will not do it. They'll take to drinking, smoking, or if some time is left, hustling or cheating, they will take it. Because for them, eating is the main, it's just like animals. And for the very rich, they are another type of animal. They are vultures. We cannot live without parasites. Tell them anything, they will not listen. So the upper class, those classes, ours is the middle class. It has to settle down with the value of service. And then once they see the river flows, they can be enriched and they become. We are like that. We have to enrich both the bank. This side, that is important. One side you have to cleanse the upper class. And lower class you have to enrich. But if you do not have that in yourself, how are you going to do it? Suraj Yoga is going to work for the middle. This is the point. Not for the poor. And that's a very wrong thing. The attention is put. That's not our job. We have not created poor, have we? We have not. Who has created? They are protected. We love them upper and down. So they say we have labor government. Both are just the same. That's it. They say by denying God, you are challenging God. If they deny God, then God will fall in it. That's why they deny. Otherwise, what is the need? What matters? Is he standing for any election? Is he contesting an election that you are saying we do not believe in God? What does it matter? So that is how we understand that these are fools. Is there any way, Mother, that we can increase? That's what I said. The way is that the middle class, see, the middle class should be there. But for these people who go to extension, I have to say, I do not believe I am anything. Then let it be. You don't make them believe. Is there any way of helping them to help them understanding or even to educating? You see, you
If you think that you can make these people believe, you can. It's not. They will not. They will not. Because the more you will try to do it, the more they, because you see their ego is hurt. They are the people whose ego is hurt because they find some people rich. Say the person on this bank and this bank. This is this thing, this is. We are somewhere down, right? And they are seeing each other. So they are their ego is well. And here there are people who are egoistic. So both do not believe in God. What does it matter if they believe it or not? Then it's God. You see, they just want to say it out. I here it is a big word. I've seen everybody. I believe. Now who are you? Everyone says, I believe in. Now believing from where it has come. From where did you get this belief? What is your experience? So that's how they do it. So they have to say, if a politician comes up and gives a lecture, I believe that this is this. Everybody hears that. So they go on home. They say, I believe in this. It's like ringing one bell, putting into another bell, and the resonance starts, and everybody says, I believe. See, I find in this country, even an ordinary beggar talks like that. There's no humility of any kind. That's why they talk like that. They lack humility. They are so aggressive. That's how aggressive. They have aggressed all the cultures of the world. Now, today's article I brought it for you especially. You see now, eggs in Tehran. Whatever they have done, the Iranis have done, they have put the chadar on it. Okay. You wear a chadar. So an English lady writes about it. She said, they have made our body. You see now, your attitude towards, I say that you can say the British attitude, but you can say the Western attitude, is that your body is very beautiful, so you must show it. Why cheat yourself? This is not because the body is beautiful, but you want to catch it. It's simple. It is as simple as that. But you want all over the world, the women should be like you. It's such a subtle aggression, you don't know. They have killed all the cultures with this kind of an understanding that we are the best. Others also must think they have their own cultures, understand them, and think if you do not say, please give me this, then he's uncultured. You know, it is such a subtle aggression on everybody's culture. That's how you have removed all the Indians from, say, South America, North America. You see, everywhere, wherever these people have gone, they have finished the culture. It's a very, very special type of aggression. And aggression has a reaction on either the other cultured people, those people who are other cultures, would strive to be this culture because this is supposed to be the great of God. To say like that, that we should not be afraid of showing, we should not be ashamed of our body. What is something like privacy, Vinay? Is there nothing like privacy? We should respect our bodies. What? Now, if this is the attitude taken, then everybody, oh, this woman is indicated because she does not show off her body. The showing off of the body is nothing but is a sort of prostitution. It is all, it's very subtle. Now, another suggestion comes in from there that for 25 years, they cannot believe that people can remain celibate because in this country, people can. But there are so many countries where they really remain celibate till the age of till they are married. So many of them. But according to them, it is not possible. So those who remain must be wrong, they're telling lies. And they force this on others that you become like us because our noses are cut, so you also cut yours. On all types of people, if you go anywhere, all the Western, what their culture.
It's a variety of culture. And then certain cultures they have used nothing. And by their aggression, they have told people that we are sort of the highest of our English language must be French, you know. इधर नहीं ढकेलो, गिरेगा गिरेगा. Don't open this door. So, you see what I'm saying is, when we understand we have to change, we must know we have to be really humble, not in language, not in, but inside, to know that we do not aggress others. Alright? So, this labor and this one problem is only of aggression. One community here. Say you take an elite person, so-called elite. That's why I like Levita. They have made a big satire on all the elite, the dancing of it. They have made a big satire on all the upper classes and all the lower classes and all that. It's a very good one. I must say, it's a very good satire. It's a very good satire. So, now, if you have that aggression within you, exist, let me take it out. The culture of the spirit has to come. That is it. If that culture doesn't come, see, then these all cultures are very, and they can never give any happiness to it. Labor people think that they are hurt by the elites or by the rich or the upper. But what are they aspiring to be? They are aspiring to be the rich people themselves. They are hurt by the rich and they want to be the rich. It would be like if you are hurt by somebody's shoe, you become shoe. If you are hurt by the rich, then why do you want to be rich? It's a simple question. For a person like me who has no material,
Jai Shrimat Ji. जय श्री माता जी। Namaste, Auntie Sudha from Anand in Gujarat. Thank you so much for joining us, and Jai Shrimat to everyone tuning in to our Sahaja Yoga Golden Memories this morning. As you can see, it's a lovely sunny morning. यहाँ पे काफी अच्छी धूप निकली है। बहुत बहुत आंटी सुधा आप हमारे साथ आज हैं। श्रीमाता जी की ये टॉक जो अभी हमने सुनी, ये डॉलिस हिल, this is Dollis Hill on the 29th April at 1979. Oh, very nice. Yes, Yes. I was There's a- there. I didn't understand the English at that time. Acha. Yes, I was there. You were there. Okay. So yes, that's why it's nice to sort of be reminded by Yes. where we should be and what our priority in life should be, with all humility and innocence. Will you please share with us, आप हमें कुछ बताएंगे उस समय जब आप थे और आपको इंग्लिश तब नहीं आती थी, जैसे आप बता रहे हैं, you didn't know the language because you had only recently moved to the UK in England. हाँ, हम So इंग्लैंड में 1975 में मूव हुए थे इंडिया से। एंड आई वाज द मैं सबसे लास्ट मेंबर थी इंडिया से। हमारी पढ़ाई करके हम लास्ट गए थे। तो क्या हुआ, 77 में मीटिंग जब कैक्सटन हॉल में शुरू हुई, तो एक छोटा सा इंसिडेंट लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम वहां गए, तो फिर हम वो कंटिन्यूस किए। श्री माता जी बोलते थे एवरी मंडे आना, हम जाते थे। हमको बहुत आनंद आता था क्योंकि इंग्लिश में समझ में नहीं आता था, पर जॉय इतना होता था कि मंडे की मीटिंग समाप्त नहीं हुई, हमको ऐसा फील होता था कि काश कल और मंडे आ जाता। इतना ट्यूसडे टू संडे तक कौन वेट करेगा, काश कल ही। हाँ, इतनी बेताबी होती थी। और श्री माता जी के साथ आनंद बहुत आता था, और उनको मालूम था कि हमको इंग्लिश नहीं आती, तो श्री माता जी जैसे वो बोलती जाती थी, मगर मुझे लगता था कि समहाउ वो हमको उनके अंदर ट्यून कर देती है, तो हमको वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता था। कुछ ना कुछ वो अंदर श्री माता जी डालती जाती थी, यानी कि अपग्रेड करती रहती थी। तो ये पर्टिकुलर जब था वो डॉलिस हिल में था और अप्रैल था, और अगर मैं भूलती नहीं तब बहुत स्नो पड़ी थी। अच्छा। हाँ, एक बार वो अप्रैल में बहुत ही स्नो गिरा था और श्री माता जी ने हमको बुलाया था, तो हम ट्रेन लेके गए। आई होप ये सेम मीटिंग है कि ट्रेन में तो हम घर से निकले, काफी वॉक स्टेशन में, साड़ी पहन के निकले। हमारी माँ बोलती कि तेरे को मालूम है साड़ी पहन के कहाँ जा रही है? बोलती तू रहेगी, ये बहुत ठंडी है। हमने बोला ठीक है। तब एक वो इंडिया से गए तो एक प्रोटोकॉल रहता है ना कि साड़ी पहनना चाहिए, तो हम गिरे भी, फिर वापस जाए घर, या हमने बोला नहीं आज जाना है समथिंग, और 2-3 ट्रेन करके जाना पड़ता था डॉलिस नॉर्थ में। तो हम गए थे, तब मेरा ख्याल आधे से ऊपर का लेक्चर हो चुका था। तो हम जैसे अंदर गए, श्री माता जी ने हमारे सामने देखा और इशारा करके बोला उनके राइट साइड में वो एक सोफा था, जो सोफा बेड भी हो जाता है, बोलते यहाँ के बैठ जाओ। फिर वहां बैठ गए और श्री माता जी अपनी ये पूरी बात बताती रही, और बीच बीच में हमारी तरफ थोड़ा नजर भी कर लेती थी, ताकि उसका कारण हो सकता है कि हम बोर तो नहीं हो रहे, या तो श्री माता जी के हमारा अटेंशन कहाँ है, श्री माता जी जो बात कर रही है वो बात पे है या ये दिमाग कहीं घूमने चला गया है। तो श्री माता जी अटेंशन को भी कंट्रोल करती थी। ये उन्हीं के पास बिठाए तो उन्हीं के पास वहां, सो दैट्स हर मैग्नेटिक पावर जो श्री माता जी का था, वो सबको कंट्रोल कर लेता था। और थॉटलेस, बिल्कुल थॉटलेस, कोई थॉट नहीं आता था
कि कोई सवाल, तो श्री माता जी बोलती अब किसी को सवाल, कोई बीच में भी सवाल करता था। अब जो नए आते हैं वो करेंगे क्योंकि लॉजिकल है, मगर हम लोग तो थोड़े रीड हो गए थे तब तक, तो वो बोलती है सवाल नहीं करना, मेरे पास टाइम अच्छा। नहीं है, मैं जो हाँ कहूँ। ये तो हम लोग सवाल करते भी नहीं थे और सवाल आते भी नहीं थे क्योंकि थॉटलेस होते थे। और आखिर में जब श्री माता जी बोलते थे कि ठीक है, अब एनीबडी हैव क्वेश्चन आस्क, तो फिर सबके फेस ब्लैंक होते थे। फिर वो श्री माता जी जोर से हंसती थी, अरे आप लोग सवाल नहीं करना है, कैसे करोगे, आप सब तो थॉटलेस है। हाँ। तो ऐसे श्री माता जी पर्सनली बुला लेती थी, जब सर सिपी भी बाहर गए होते, स्विट्जरलैंड जाते 10-15 डेज के लिए, तो वो बुला लेते थे, उनके घर पे भी बुलाते थे और वो वर्कआउट करती थी। जो रेगुलर हम थे, तो कोई कभी 7 लोग हैं, कभी 8 है, कभी 4 भी है, कभी 5 भी है, क्योंकि हाँ। वर्किंग होते थे, हाँ। जो काम करते थे वो तो नहीं आ पाते थे, सही है। और जो काम पे नहीं है वो हाँ। जाते थे। तो हाँ। कभी ऑफिस में ऐसा होता था तो हम उस दिन छुट्टी ले लेते थे। अच्छा। हाँ, अ, ये भी नहीं क्यों लेते थे, मगर हाँ। आने लगा था। तो हो सकता है कि श्री माता जी ने इस समय के लिए उस समय हमको अपने मैग्नेट में रखा, सही है। अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ताकि वो अभी जब आता ही नहीं, समझ में नहीं आता, सवाल करने का बात ही नहीं उठता है। सही तो है। एक तो मिल गया श्री माता जी को कि वो जो बोले वो अंदर उतर जाएगा, मतलब हाँ। ऑटोमेटिकली वो अंदर उतार देगी, और समय आने पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का वो यूज कर लेगी। सही है। जो हमें इसीलिए हमेशा लगता है कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, चोजन इंस्ट्रूमेंट, कि मुझसे कार्य करवाना है। अभी इसीलिए हमारा फील्ड इंडिया ज्यादा क्यों है, हम इंग्लैंड के होते हुए भी। तो इसके लिए हम बार बार सोचते हैं, फिर हम समझ गए कि श्री माता जी ने कहा था कि अगर ये सहयोग फेल होगा तो तुम लोगों की जिम्मेवारी है, यूके वालों की। आपने भी अच्छा। शायद बात, हाँ, ये सुना होगा कि यूके वाले इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा आपको दिया है और आप लोगों को मैंने प्रिपेयर किया। सही है। अभी दुनिया में जहां भी है आपको सिखाना है, हाँ। आपको वर्कआउट करना है। हाँ। तो हमेशा हमको ऐसा होता था कि अरे ये सब तो इंग्लिश है, ये तो अपने हाँ। कंट्री में रहेंगे, ये इंडिया तक नहीं जाने वाले। और इंडिया में भी श्री माता जी जन्मी है, उनका कार्य बहुत वहां हुआ है। तो ये जो हमको इंग्लैंड में दिया, बहुत डीप नॉलेज दिया गया। और श्री माता जी ने ये भी कहा, जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ मैं इंडिया में भी अब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हाँ। इंडिया में जो सनातन व्यवस्था है, हम्म। उस सनातन व्यवस्था को श्री माता जी ने एक अपर लेवल पे वहां एस्टेब्लिश कर दिया, जी। कि सनातन को फॉलो करते करते स्टेप बाय स्टेप आप जहां पहुंचने वाले हैं वहां ही हम लोगों को पहुंचा दिया। हाँ। तो हम लोग को एक तरीके से एस्केलेटर दे दिया उन्होंने कि स्टेप बाय दे स्टेप। दिया श्री माता जी ने। हाँ। तो जब समय आया तब ऑटोमेटिकली हम आते रहे, हमारा यहाँ घर था, आते रहे। फिर बा से हमारा कनेक्शन हो गया, राहुल बा से। जब राहुल बा से कनेक्शन हो गया तो फिर काफी सहयोगी बा को मिलने आते थे। वहां से शुरू हुआ कि हम कलकत्ता जाने लगे, मुंबई जाने लगे। डॉक्टर मधुर वाशी हेल्थ सेंटर में बुला लेती थी कि वो, जब श्री माता जी पूना में थे तो एक बार डॉक्टर मधुर उनके पास गई कोई प्रॉब्लम लेके। किस उन्होंने, साल की बात है आंटी? ये पता नहीं, हम 2012 की होगी शायद, अच्छा। 2000। तो डॉक्टर मधुर राय ने उनको पूछा कि श्री माता जी ये प्रॉब्लम, तो बोलते श्री माता जी थोड़ी चिढ़ गई।
बोलते कि एक ही बात मैं कितनी बार आप लोगों को समझाऊं, आप लोग क्यों नहीं समझते। फिर बोला देखो पुराने सहयोगी हैं उनको ढूंढो, वो लोग सब आके सिखाएंगे। फिर उन्होंने पूना में एक गडकरी भाई थे, उनको फोन किया, तो वो बोलते कि हम तो अभी नहीं करते, हम बाहर भी नहीं जाते। फिर एक दूसरे थे, उनका नाम शे से कुछ आता है, वो बोलते मेरे घर में चलता है सेंटर, मेरी उम्र भी हो गई है, मैं भी नहीं जाती। फिर एक दूसरे आंटे अजीत थे, उनको वो बोलता मैं भी घर पे चला रही हूँ, मैं भी नहीं आ सकती। तो उन्होंने मेरा ख्याल राहुल बा का नाम दिया, बोलते उनका नंबर है, उनको पूछो। तो उनका फोन आया बा के ऊपर, तो बा बोलते हैं कि हाँ श्री माता जी का काम है, हम जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मगर मैं अकेली नहीं आऊंगी। तो बोलते बा आप जिसको लेकर आओ चले आओ। तो बा बोलते मैं एक फोन देती हूँ, लिख लो। बा ने हमारा फोन नंबर दिया जो यूके का था। अच्छा उस वक्त हम यूके में थे। अच्छा तो डॉक्टर मधु बोलते ठीक है हम दीदी से बात कर लेंगे, उन्हें हमारा नाम दिया। तो उनका फोन आया लंदन, हमने उठाया, तो बोलते मैं डॉक्टर मधु राय बोलते। तब हमको नहीं मालूम था वाशी हेल्थ सेंटर का बारे में ज्यादा कुछ, एक हेल्थ सेंटर है मगर कौन है कहाँ है, वो कुछ ज्यादा नहीं था। तो बोलते कि राहुल बा ने मुझे आपका नंबर दिया है और बाने को हमें जरूरत है उनकी कि हेल्थ सेंटर में आए। श्री माता जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को ढूंढ के बोलो, वो लोग आके सिखाएंगे। सही है। हमने बोला कि हम जरूर आएंगे, मगर इस वक्त हम लंदन में हैं और 1-2 मंथ के बाद हम इंडिया आने वाले थे। तो हमने बोला हम इस मंथ में आएंगे, तो हम जरूर बा को लेके आपके पास आएंगे। फिर हम जब आए, हम बा को मिले, ये फिर डॉक्टर मधु से बात हुई, वो बोलते आप लोग ठीक आए। फिर हमने टिकट बुक किया, मैं और बा चले गए। तो फिर वहां 10-15 दिन तो उन्होंने क्या किया, सर्टेन पेशेंट्स होते थे जो थोड़े पजेस होते थे, पहले वहां को रखा था कि पजेस के ऊपर। बाद में क्या है कि वो रजिस्टर हो गया पूरा हेल्थ सेंटर, तो वहां आपको कोई भी आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और ये कोई भी डॉक्टर चाहिए। अच्छा वो वहां जो जहाँ कार्य होता है सब क्लिनिक का, वही लोग जा सकते हैं। तो जब हम गए तो डॉक्टर मधुर बोलते कि आप वहाँ टेक्निकली नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसा करना, जो बड़ा हॉल है जहाँ श्री माता जी का दरबार है वहां करना। फिर उन्होंने 2-3 पेशेंट्स को बुलाया कि अब ये लोग आए हैं तो आप लोग आ जाओ। तो हैदराबाद से हाँ वो लोग आ गए। फिर हमको बोला कैसा, तो समझ में नहीं आता था क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस काम करता है। आप अगर मुझे पूछो थियरी नहीं आती मुझे, मगर प्रॉब्लम के सामने खड़ा कर दो तो इंस्ट्रूमेंट वर्क करना शुरू कर देता है। फिर बा और हम गए उस हॉल में, फिर हम तो बा तो खड़े रहे। तो हमने बा को बोला बा श्री माता जी की तरफ हाथ करके आप इसको वाइब्रेशन श्री माता जी के सप्लाई करो, ताकि इंस्ट्रूमेंट को श्री माता जी की जो एनर्जी आती है वो इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं चलने देती कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे चक्रों पे समझ में नहीं आता। अच्छा तो ये इंस्ट्रूमेंट श्री माता जी चला रही है। जैसे हम लोग कर रहे हैं मीटिंग, तो एक जूम वाली मीडिया है, आप कनेक्ट हो गए, मैं कनेक्ट हो गया, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए हम दोनों बात कर रहे हैं। तो हमारा सोर्स था, आप अभी है जूम, हमारा सोर्स श्री माता जी है। तो वो खड़े रहे और मैं वो लड़की के पीछे खड़ी रही, उसके माता पिता भी खड़े थे। तो हमने उनको बोला कि आप सॉल्ट लेके आओ और न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर जैसा या कपड़ा लेके आओ, क्योंकि कारपेट थी, और ये लड़की के नीचे बिछा के उसके ऊपर सॉल्ट रख दो और उसके दोनों पांव उसके ऊपर रख दो और लेमन ले आओ। फिर वो नींबू लाए, लड़की के दोनों हाथों में मैंने बोला तू नींबू पकड़ ले, वाइब्रेटेड नींबू, वाइब्रेटेड लेमन। फिर वो
जैसे काट के हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, वैसे तो वो उनके हाथ में पकड़ा दिए। ये टेक्निक अच्छी है अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कोई नहीं है क्लियरिंग करने वाला, तो जब आप ध्यान में बैठो या श्री माता जी के सामने बैठ जाओ, पूरा बंधन लेके बैठ जाओ और एक आसन रखना। आसन रख के फिर दोनों हाथ में आप नींबू ले सकते हैं, या एक हाथ में नमक रखो, एक हाथ में नींबू रखो और बैठ कौन के। रखना है ये भी कुछ, किसी भी हाथ में नींबू, किसी भी हाथ में नमक? हाँ, ज्यादातर लेफ्ट में नींबू रखो, राइट में नमक रखो, क्योंकि वो ज्यादा प्लस माइनस काम करता है। तो क्योंकि ये माइनस है, ये सही प्लस है। है ना, हाँ तो यहाँ सॉल्ट हम्म। काम करेगा, यहाँ लेमन लेफ्ट में काम करता है। तो तो लेके नींबू आप बैठ जाओ। salt हाँ, और श्री माता जी के श्री चरणों पे चित्त रखो, वहां नजर गड़ा के बैठो और अंदर से प्रार्थना करो, श्री माता जी, मेरे शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी मेरी समझ से बाहर है, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई क्लियर करने वाला, तो कृपा करके आप मुझे मदद करिए। तो वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगी आपके अंदर, और ये दो इंस्ट्रूमेंट है वो सक कर लेगा, और वो गर्म भी हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए एक पॉलीथीन बैग रखना साइड में। जब आपको लगता है कि अभी ये गर्मी सहन नहीं होती, तो वो दोनों उस पॉलीथीन बैग में डाल के हाथ करके सीधा हाथ में जाओ। आपको एटलीस्ट मैं बोलती हूँ 10 to 15 डिग्री आपकी जो हीट है वो कम हो जाएगी, और ऐसे आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर उस पेरेंट्स खड़े थे, हमने लेमन लेके, जैसे श्री माता जी के एक्सटर्नल हॉल में हमने देखा था वो कैसे क्लियर, सेम सेम मेरा हाथ वैसे वो लेमन उसकी बॉडी पे टच करके हम घुमाते रहे। तो पेरेंट्स थोड़े डरे हुए थे, वो दूर हो गए, तो लेमन हाथ से गिर गया, तो हमने उनके तरफ के हमको लेमन दो, तो वो टच करने को तैयार नहीं थे। तो हमने बोला घबराए नहीं, फिर हमने जाके उठा लिया, फिर हमने कंटिन्यूस किया, फिर वो लेमन काफी सक कर लिया, तो हमने उसको वो एक पॉलीथीन में डाल के दूसरा लिया, ऐसे हम क्लियरिंग करते रहे। तो लड़की के हाथ में लड़की हाँ, सामने न्यूज़पेपर पे वाइब्रेटेड सॉल्ट था, वो खड़ी थी। नहीं, उसको चेयर पे बिठाया, अच्छा, और सॉल्ट पैर सॉल्ट पे थे। फर्श पे रख दिया, फर्श के ऊपर, अच्छा, और उसके पेपर के ऊपर हमने बहुत सारा नमक डाला और दोनों पाँव उसके ऊपर रख दिए, और हाथ में उसके तो अब दो वाइब्रेटेड नहीं। लेमन दे दिए वाइब्रेटेड। अभी क्या है कि उसके अंदर पोजेशन था। हाँ, और आप पीछे से हम एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज उसके चक्रों पे मैं ऐसे बॉडी पे लगा लगा के मैं घुमा रही थी, और बार वाइब्रेशन वहां से सर्कुलेट कर रहे, हाँ और दोनों पेरेंट्स देख रहे थे। फिर ऐसा तकरीबन 1.5 घंटा हमने किया। अब हमको मालूम नहीं था, ऊपर गैलरी थी, वहां काफी लेडीज सो रही थी, तो उसमें 2-3 थे जो साउथ अफ्रीका से आए थे, अच्छा। तो वो लेडी गैलरी से देख रही थी। हाँ तो हमने ये सब किया, फिर पेरेंट्स को बोला ठीक है आज का सेशन ये हुआ, उसको बंधन दे दिया, सब किया, और लड़की को पूछा क्या लग रहा है, वो बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का लग रहा है। हमने बोला ठीक है, अभी जाके आराम करो आप लोग, कल फिर से करेंगे। अच्छा। तो डेली हमारा ये रूटीन हो गया। वो लेडी देखती थी, उसने उसका बेटा भी था लिंकन, साउथ अफ्रीका से आए थे, उसको बोला कि ये 2 लेडी आई हैं, वो ओपीडी में नहीं जाके यहाँ एक लड़की के ऊपर काम कर रही है। हाँ हाँ हाँ। फिर वो लोग हमको मिलने आए हमारे कमरे में, तो बोलते कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये नॉलेज, हमने बोला कोई नहीं, क्लियरिंग है, ये टेक्निक्स है। तो बोलते हम लोगों को कब मिलेगी, तो हमने बोला देखो भाई, ये तो मैं कैसे कहूँ, अब श्री माता जी हमारे थ्रू कर रही है, मैं तो नहीं जानती कि कोई जानता है या नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लोग नहीं जानते, इंग्लिश लोग आज भी हाथ नहीं लगाएंगे, उनके अंदर है, उनकी सिस्टम में श्री माता जी ने
सब कुछ डाला है, क्योंकि क्यों, वो भय करते हैं और हम लोग निर्भय होते हैं। कम वक्त में श्री माता जी खड़ी है हमारे साथ। ये आंटी टाइम लगा उस बच्ची को ठीक होने में? उसको लगभग हमने 5 दिन उस पे ट्रीटमेंट किया, तो काफी वो हल्की हो गई थी। फिर इसके दरमियान क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स बोलते हम जा रहे हैं, मगर आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। अच्छा। हमने बोला ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे। तो डेट तो बा को पूछा, अभी जो वो डेट था, हमने बोला 1 से 15 के बीच में कोई भी डेट ले लो, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं था। तो उन्होंने 1 to 15 डेज का कर दिया। वो टिकट उसी वक्त जाके टिकट करके हमारे हाथ में, मैंने बोला 15 दिन क्या करेंगे हम? तो बोलते नहीं, वहां भी बहुत सहयोगी है। तो सही ऐसे है। फिर हम लोग हैदराबाद 15 दिन रहे, फिर उनके सेंटर में गए, वहां भी लोग आते थे मिलने, उनको भी गाइड करने लगे। उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम था, तो हमने वहां भी बोला कि ये इतना इतना कर लो, तो आपको काफी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो आंटी जरा बताइएगा कि एक जैसे डॉक्टर मधुर राय ने बुलाया कि वहाँ वाशी हेल्थ सेंटर में, क्योंकि वो जी हेल्थ डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड थे, मैंने जिनके पास डिग्रियां थी वही हाँ करते, और आप और राहुल बा, हम लोग तो बहुत अच्छा समय हम लोगों को श्री माता जी ने दिया ISPS में, तो हमने खुद देखा है आपने कैसे क्लियर हाँ किया, इसलिए थोड़ा अनुभव है हमको और शंकर जी को और हाँ बाकी अन्य के सदस्य जो थे, स्टाफ मेंबर्स। तो जी एक तो ये टेक्निक आपने बताई जो श्री माता जी ने कैक्सटन हॉल में क्लियर करते थे, हाँ। और भी कौन सी टेक्निक से जरा हम लोग को बताएंगे प्लीज? जो ये टेक्निक, जिसके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है और उनको जी। लगता है कि कोई एंटिटी है, या हाँ। फैमिली में कोई मदर, कई मदर लोग लिखते हैं। एक वीडियो उन लोगों ने बनाया था, हैदराबाद वालों ने, 3 वीडियो जी। सेशंस, उसमें से कई हमको कांटेक्ट करते हैं कि ये तो हम बोलते कि भाई हमने बताया है, तो उनका किसी को बेटे का प्रॉब्लम है, किसी का बेटे का प्रॉब्लम है, कि लगता है कि पजेस है, कुछ है। तो दिस इज सेफेस्ट टेक्निक टू यूज। जैसे किसी क्योंकि को पैरालाइज हुआ है, जी। अब पैरालाइज के लिए भी ये सॉल्ट बेस्ट टेक्निक है। तो उनको क्या करना है कि या तो एक थाली में सॉल्ट ले लो, या एक सॉल्ट बैग बना लो, पी लो, सॉल्ट पी लो। जी। अब सॉल्ट पिलो बनाना है, तकरीबन आप 1 फीट का ले लो, उसके अच्छा। अंदर आप 1 फीट 1 by 1 फीट का एक कवर बना के, या ओल्ड पिलो ले लो, हाँ। उसको बीच में से काट लो, और उसके अंदर सॉल्ट भर दो, तकरीबन 1 kg, हाँ। और उसके अंदर कैम्फर डाल दो, तकरीबन 20 ग्राम। अच्छा। वो बना के वो पिलो को सिलाई करके बना लो, और आपके पाँव के नीचे रख के बैठना है। तो अच्छा। नीचे आप प्लास्टिक कवर या कोई कपड़ा रख के बैठना, क्योंकि यहाँ अगर मानसून है तो वो पिघलता है सॉल्ट। हाँ बिल्कुल। तो आप उसका सेफ्टी करके बैठना, और जैसे कमर में दर्द है हाँ। तो आप लेट जाओ और पिलो कमर के नीचे रख दो। अच्छा। तो क्या है कि वो जो पेन है, वो पेन ड्रेन हो जाता है। हाँ। आपको जब तक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, जब तक वो चलता रहता है। और जैसे आप 10-15 मिनट हुआ, फिर उसको निकाल के साइड में रख दो। ये 15-20 दिन तक, 1 महीना तक ये पिलो काम लगेगा। फिर अच्छा। समझ में आ जाएगा कि अभी इसका काम नहीं है, तो पिलो खोल के उसको आप ठीक। काट कर दो, और नया सॉल्ट वाइब्रेट करके भर दीजिए, सॉल्ट एंड कैम्फर। तो हाँ। ये थेरेपी है, और ये बेस्ट है कि एक एंड पेन्स भी निकल जाता है। और पैरालाइज वालों को ये क्या होता है कि उनकी बॉडी का जो यहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, वो सॉल्ट से खुलता है। ये भी श्री माता जी कैक्सटन हॉल में एक लेडी के पाँव के नीचे इतने इतने रॉक सॉल्ट रखवा के उसको ठीक किया था। 1 मंथ में वो लेडी बोलना शुरू हो गई थी, खड़ी हो गई थी। जो टोटली पैरालाइज थी,
सिर्फ आंखें ऐसे ऐसे होती थी, और वाह। वीकेंड में उसका हस्बैंड लेके आता था। और एवरी मंडे, ये डेली नहीं था, मंडे टू मंडे। हाँ, और हाँ, हाँ। श्री माता जी ने उसको ठीक किया था, ये हमने हमने हमारी आंखों से विटनेस किया है। जी जी। तो अभी मुंबई में एक सहयोगिनी लेडी है, तो उसके फादर को हुआ था पैरालाइज, वो चल नहीं पाते थे, दो लोग आदमी होते थे, उनको उठा के लेके जाते थे, बिठाते थे सब। हमने बोला कि भाई ये करो, और स्पीच भी उनकी नहीं ठीक थी, तो उन लोगों ने ये शुरू किया डेली। मैंने बोला टेलीविजन देखते तब भी रखो, ऐसे बैठे तब भी 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, 5-10 कंटिन्यूस दिन में करो, पैर के नीचे पैर के रख। नीचे। हाँ, आप हैरान हो जाएंगे, ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग सहज योगा, वो सहज योगा ने उनकी बेटी थी। तो ये हाँ, करते करते 20 दिन के अंदर वो अच्छी तरह बोलने लगे, हाँ। जय श्री माता जी। स्पीच अच्छी हो गई। फिर वो श्री माता जी को भी मानने लगे, बेटी बोलती है श्री माता जी सब कर रही है। उसके बाद और 10 दिन, 1 महीने के अंदर वो खुद खड़े होके खुद टॉयलेट बाथरूम जाते थे, उनको हेल्पर की जरूरत नहीं रही। वाह वाह। अभी हमने ये क्यों, हमको ये नहीं, हम लोगों को किसके नहीं, श्री माता जी को मानो, ये करना है, ये करना है। श्री माता जी इज ऑलरेडी वर्किंग थ्रू अस, तो सही है। हमको उसका ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है। उसको ट्रीटमेंट बताना है कि भाई हमने ये ट्रीटमेंट श्री माता जी से सीखा है, आप आजमा के देख लो, अगर हाँ, वर्क हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो जय श्री माता जी। तो यहाँ सही है। क्या, हम किसी को कंपल्सन नहीं करते, और अंदर मालूम है ये काम करने वाला है। क्यों? श्री माता जी ने वो हम लोगों को प्रॉमिस दिया है सही कि है। आप मेरे हो जाओ तो हाँ, मैं आपकी हो जाऊंगी, आप जो आपके मुंह से निकलेगा वो मैं करके दिखाऊंगी। वाह। श्री माता जी के वचनों पर हमारा पूर्ण विश्वास है बिल्कुल कि इस मुंह से वही निकलेगा जो श्री माता जी चाहती है। सही अभी है। हमने प्रार्थना किया कि माँ, अभी ये इंटरव्यू जो है, हमारा दिमाग तो है ही नहीं, हमने तो दिमाग ही नहीं रखा है, तो अभी जो कहना है बोलना है, आपको बोलना है, क्या बोलना है, सही। जो सवाल आएगा जवाब भी आप दोगे, हम तो सिर्फ वाइब्रेशन वाइब्रेशन फील करेंगे। तो सही। ये है पूर्ण विश्वास। जी। और पूर्ण विश्वास कब आता है, जब ये टेरिटरी बंद हो जाती है, लॉजिक, और ये हाँ, लॉजिक को कम करके, कम कम करते 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 उसको एकदम फिनिश करने के लिए इसको पहले एस्टेब्लिश करो, सहस्त्रार्थ को इतना सा खोल के देती है श्री माता जी, इतना रियलाइजेशन के वक्त इतना खुलता है। मगर ध्यान करने से अभी लोग क्या क्लियरिंग में पड़े रहे हैं, और अपने प्रॉब्लम पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। अरे जी। मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ठीक है आपने एक्नोलेज कर दिया, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द है, एक्नोलेज हो गया, अभी उसका उपाय क्या है? तो उपाय ऐसे सहयोगी हम क्या करेंगे, फुट सोकिंग कर लेंगे, या तो नमक लेके बैठ जाएंगे, कुंडलिनी को बार बार उठा के यहाँ से खींच खींच के जो है वो हम निकालते जाएंगे, गरम गरम निकलेगा मतलब कुछ निकल रहा है। उसके बाद ऐसे करके ठंडा 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 हो गया है मतलब एक्टिव हो गया है, बस बैठ जाओ सही। सीधे। हाँ, और 5 मिनट में कौन सा पेन कहाँ गया समझ में भी नहीं आएगा। सही तो है। हमने क्या किया, पेन का उपाय क्या है, हम उसके उपाय के ऊपर गए, और वो उपाय हमने लागू कर दिया, तो वो नेगेटिव, जो नेगेटिव पेन है उसके ऊपर हमारा चित्त नहीं है, क्योंकि हमारा चित्त मैग्नेटाइज है। सहज योग में आपका अटेंशन मैग्नेटाइज होता है, वो प्यूरिटी का होता है। अगर प्यूरिटी, प्योर अटेंशन नेगेटिव पे जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है नेगेटिविटी को सॉलिड बनाने में। तो हाँ, जितने भी सहज योग, आप ये मार्क करना, विटनेस करना, नोटिस करना कि जितने पेन वाले हैं ना, कंप्लेन करते हैं, उनका ज्यादातर ध्यान उनके पेन के ऊपर रहता है, उनके प्रॉब्लम्स पे रहता है।
प्रॉब्लम से बाहर निकलने पे नहीं रहता, हाँ। इसीलिए वो फंसते हैं उसमें। हाँ। तो इमीडिएट हमको वो, आपका सर दर्द है गोली खा लो, इमीडिएट हम उपाय करते हैं ना। मगर बहुत सर दर्द है, बहुत सर दर्द है, ये मैं 10 बार आपको बोलूं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सही। आप मुझे रेकमेंडेशन करेंगे कि हाँ, भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अगर जितना उपाय मुझे मालूम है, कुछ नहीं आता श्री माता जी, कुछ नहीं आता, ये है, अब आप जानो और ये मेरा प्रॉब्लम जाने, हम आपके हैं। हाँ, सही है। तो भी आप उनके हो सकते हैं। मगर कई लोग लॉजिक में फंसे हैं, उनको ये सरेंडरिंग, अब हम बोलते हैं सरेंडर हो जाओ। आप सोचे, समर्पण। हाँ, हम तो समर्पित हैं, हम तो इतने साल से सहयोग कर रहे हैं, कैसे हम समर्पित हो जाए? समर्पित यानी कि आपको मैटर को अपने हाथ में नहीं लेना है, इसको पूछो, उसको पूछो, ये इसको बोलो आप बंधन दो, उसको बोलो आप बंधन दो। नहीं श्री माता जी, हम आपके ऊपर निर्भर हैं, सही है। हम आपके ऊपर निर्भर हैं। आपने जो सिखाया वो हम कर रहे हैं, काम हो जाएगा। बिल्कुल। मगर ये क्या है, कच्चे है ना, समर्पण नहीं आता, इसलिए दूसरों को मैसेज भेजते हैं कि बंधन दो, ये हॉस्पिटल में है, ये इसका ये दो, तो इसका अटेंशन काम कर रहा है, मैं किस किस को मैसेज भेजूं? मगर अटेंशन अंदर लेके श्री माता जी के चरणों पे रख के, श्री माता जी ये प्रॉब्लम आई है, अब मेरे सामने आई है, मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ कि ये सही। प्रॉब्लम का कोई इलाज निकालो। मेरा हो गया, मैंने मैसेज श्री माता जी को ट्रांसफर कर दिया, फिर वहां से रिजल्ट आना शुरू कर दिया, क्योंकि चैतन्य हमारे साथ कार्यान्वित है। अभी इसके लिए सॉलिड होने के लिए आपको सहस्त्रार से ऊपर ध्यान करना ही पड़ेगा। ये डोलीसिल आश्रम में ये बात जब एक इंग्लिश श्री माता जी समझा रही थी हमको, तब एक ही बात मेरे समझ में आया था कि श्री माता जी ने कहा इंग्लिश में, असेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट डिसेंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। Literally, she said ascending is very important, descending is also very important. ये वन सेंटेंस मेरे दिमाग में ऐसा घुसा है, तो हमने बोला ये डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग में अटेंशन ऊपर जाता है, तो डिसेंडिंग आपका अटेंशन वापस नहीं जाएगा। जिस सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़े हैं उसी सीढ़ियों से आप वापस नहीं जाते हैं, तो 1 and 1 + 2 हो गए। ऐसे हम ये ध्यान ऐसे हमने कराना शुरू किया। हमको मालूम था कि लोग नहीं पकड़ पाएंगे, मगर मेरा तो वो श्री माता जी ने कहा है, अगर ये फेल हुआ तो यूके वाले रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें हमारा नंबर भी तो है ना। आंटी एक और बिल्कुल। तो हमारा भी तो उसमें नंबर बहुत है। भयंकर रूप से। ये श्री माता जी ने बांध दिया है, तो कम वक्त में हम करेंगे ये कार्य, और हमने सिखाना शुरू कर दिया। 2012 से पहले से सिखाया है। गणपति पूले में एक पूजा थी, जब हम लास्ट गणपति पूले की जो पूजा थी वहां हम गए थे, फिर हम हमारे साथ यहाँ आनंद में एक थे राजेश गुप्ता करके, वो हम हमारे साथ थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पीछे एक टेंट था, वहां वो एक एक ग्रुप को बुलाते थे और हम ये ध्यान करवाते थे। वो बोलते ये सीख लो, सब सीख लो। उन्होंने बहुत मेहनत की, 2-3 दिन तक हम लोग लगे रहे, और श्री माता जी तो वहीं पे थी एमसीडी में। वो उनका चित्र तो रहता है ना कि क्या हो रहा है, बस तब हमने वो पहली बार वहां सिखाया, मगर हम कोई तरीके से अपना ध्यान करते थे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का पूरा बैकअप श्री माता जी, पूरा प्रयोग किया श्री माता जी के सहयोग से और उन्हीं की कृपा से बेसिकली। परम चैतन्य उनकी बिल्कुल। कृपा से वो नाउ श्री माता जी इज ट्रांसफॉर्म इन परम चैतन्य। अभी एब्सोल्युटली। पूरा ठंडा ठंडा हो गया। हाँ,
हाँ बिल्कुल। ये बताइए आंटी, यहाँ पे जैसे आजकल के आधुनिक समय में, मॉडर्न लाइफ में काफी होता ही है, जैसे बाहर आप काम पे हैं तो आप हाँ बोलना ही पड़ता है, आई हैव डन दिस, आई बिलीव दिस नहीं, दैट। वो छूता नहीं। ह्यूमिलिटी रहना चाहिए, तो ह्यूमिलिटी कैसे आए? हाँ, ह्यूमिलिटी ये है। तो इसमें क्या है, वो एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वो लैंग्वेज चली जाती है, वो आपके ईगो से नहीं आती। हाँ। आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी है वो नीचे के चक्रों में है, वो ना आपका अनाहत में है ना आपका आज्ञा में है। हम्म। अगर कोई आज्ञा से बोलता है तो आप रियलाइज सोल है, आपको वो चुभेगा, वो हम्म। वर्ड आपको अंदर चला जाएगा। मतलब आपको अलर्ट किया जाता है जब वो वर्ड हम्म। आई डिड इट, मी, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, तो आपको ऐसे यहाँ चुभेगा। तो वो अलर्टनेस है। श्री माता जी अच्छा। आपको मोहन किस खबर, सावधान इस ऐसे व्यक्ति से जो आई आई कर रहा है मगर वो उठ नहीं पा रहा है। हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो अब सहयोगी नहीं भी होती हैं, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो सहयोगी नहीं है, बॉस है, कुछ भी सुनना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट उनके सामने मत खड़ा रहना, आप टेढ़ा करके खड़ा रहो। आई टू ओहो। आई, आई टू आई नहीं करना, नीचे आंखें रखो, और जरूर पड़े तो देख के फिर नीचे कर लो, सुनते रहो, ओ। आर्ग्यूमेंट नहीं करना। श्री माता जी बोलती है डेंजर पॉइंट है, एक तो आमने सामने खड़े हैं, सीधे उसके सिस्टम से निकला आपकी सिस्टम में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि बुली है। दूसरा, आप आंखों में आंखें तो उसकी आंखों से वो निकलता है, जो कुंडली नहीं होती है वो आंखों से एब्जॉर्ब करती है। और आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं। उसकी विशुद्धि आपके पर, आप नरम हो जाएंगे। आप हम्म। क्यों, आप सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं। जी। आप ये प्रूव करने नहीं, आप इनोसेंट है, आप आपको नहीं मालूम था, यस 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 करते रहना, यहाँ श्री माता जी करते रहना। आपने जैसे श्री माता जी किया, गोल घुमा देगी श्री माता जी उनको, हम्म। उनका टोन ही बदल जाएगा। और सही है। अब वो मालविका दीदी है, वो काम करती थी एनएचएस में, हाँ हाँ। तो उसकी सुपरवाइजर वो बहुत तंग करती थी। अच्छा। तो क्या है, सभी जो इंग्लिश लोग आते थे वो अकेली इंडियन थी, तो वो लोग काम नहीं करते थे, चाय पीना, सिगरेट पीने जाना, ये तो वो सबकी फाइल इसके डेस्क पे रखती थी। वो चाहते थे ये काम करने वाली लड़की है, उसका कोई आदत नहीं है, तो बोलते उसको छुपाओ। तो बहुत करती थी वो, उसको ये डांटती थी ये। तो एक बार वो बेचारी रो पड़ी, बोलते कि ये ऐसा करती है। बोले आप तो सहयोगी हैं, आप क्यों रोती है? तो बोलते मैं क्या करूं। तो हमने बोला भैरव जी को याद करो, हाँ भैरव जी सॉर्ट आउट करते हैं। तो हाँ हमने हाँ। उसको सिखाया, आपको जैसे वो लेडी दूर से आ रही है जेंट से, और आपको मालूम है कि ये बिल्कुल उस दुनिया से आ रहे हैं, आपको बोलना है ओम भम भैरवाय तेज सक्राय फट करके ऐसी चुटकी लेनी है। ओम भम भैरवाय तेज सक्राय फट, ओम भम भैरवाय तेज सक्राय फट, चुटकी, ओम भम भैरवाय तेज सक्राय फट। वो दूसरे दिन जाके उसने किया, ओके। तो मोमेंट शी स्टार्टेड डूइंग, वो सीधे उसके डेस्क पर आई, वो बोलती इतनी सारी फाइल तू कब करेगी, इन सबको देना है, तू क्यों इतने लेके बैठी। वही अगले दिन वही रख के गई थी वो। हाँ हाँ। तब श्री माता जी ने उसको, भैरव जी ने घुमा दिया, बोलते नहीं नहीं तू नहीं काम कर, उसने फटाफट उठा उठा के सबके टेबल में फाइल्स रख दी, और सबको बोला अब सबको ये करना है, और कोई 2 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा बाहर। अगर सिगरेट पीनी है, चाय पीनी है तो ऑन द टी टाइम में जाना है, रूल्स चेंज हो गए। और वाह ये वाह।
मालिका दीदी बोलती है उस दिन के बाद वो इतनी स्वीट रही उसके साथ कि इसको हॉलीडे चाहे कुछ भी चाहे, कभी उसने उसको तंग नहीं किया। वाह। फिर एक कलकत्ता करिए प्लीज। ओम बम भैरव भै भैरवाय तेज सक्राय तेज सक्राय सक्राई SAKRAY सक्राय फट फट। ओके। PH और डबल टी। जब फट बोलो तब ये क्लिक करना है, अंगूठा और नाभि की उंगली। ओम बम भैरवाय तेज सक्राई फट। हम्म। फिर यही प्रयोग हमने किया। कलकत्ता में एक दादा है, तो हाँ, उनका गवर्नमेंट का पूरा वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हाँ, अभी वो जब जाते हैं अपने साइट पे, तो वो लांच लेने के लिए बहुत आ जाते हैं। तो एक आदमी वो यंग ऑफिसर था, इनसे काफी छोटा था, वो आता था तो उसको कुर्सी देना, उसको चाय देना, ये देना, ये खुद करते थे। और वो इतना रौब झाड़ता था कि ये नहीं, इतना चाहिए, ये देना है आपको, ये देना पड़ेगा। वो बोलते 10 तो पहले ले गए, तो आप बोलते हैं इतना पैसा है, वरना मैं आपका काम नहीं होने दूंगा। तो वो बोलते हैं अभी नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे मैनेजर से पूछ के। फिर वो दूसरे दिन भी आता था, काम नहीं होने देता। तो बोलते मैं इतना तंग आ गया दीदी, अब करूँ क्या, मेरा काम उसमें मेरा करोड़ों रुके हुए हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स। तो बोलते हैं जब तब गवर्नमेंट भी मुझे पैसा नहीं देगी जब तक काम नहीं है। तो हमने उनको बोला ये करके देखो। फिर वो गए, 3 दिन के बाद वो साइट पे गए, और जैसे वो सामने देखा उन्होंने चालू कर दिया। वो बोलता है एकदम आ गए, अरे दादा दादा, चेयर थी, वो बोलते आप मेरे से बड़े हैं, आप बैठे। वो खुद नहीं बैठा, उनको वाह। बिठाए, और बोलते कि अरे आपका काम रुका पड़ा है, मुझे भी मालूम है, चलो हम कर देते हैं, ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। फटाफट फाइल में साइन की। वो भूल गया पैसा लेना, वाह वाह। ये लेके गए थे, वो पैसे की बात ही नहीं हुई, फटाफट साइन किया। दादा अभी इसको जल्दी खत्म करो ताकि मैं दूसरी साइड पे जा सकूं। वाह वाह। उन्होंने बोला मैं डबल मजदूरी लगा दूंगा। उन्होंने रात दिन 3 3 टीमें लगा के उस काम को 15 दिन में समाप्त कर दिया, और उनसे छुटकारा हो गया। इतना ये पावरफुल मंत्र हमारे पास है, मगर उस पावरफुल मंत्र के लिए आपको अंदर का पावर इंटैक्ट करना पड़ेगा। सही है। आपको मिडिल में सुषुम्ना में रहना पड़ेगा। सुषुम्ना में अगर आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती, और जो भी आपके मुंह से निकालना है वो श्री माता जी स्वयं बुलाएगी आपसे। जो काम करवाना है श्री माता जी स्वयं आपसे कार्य करवाएगी, आपको अलर्ट भी करेगी। श्री माता जी कभी आपसे बात भी करती है, मगर इतना सॉफ्ट वॉइस होता है, अगर ये मंडेन लाइफ में फंसा है तो यहाँ सुनाई नहीं देता। श्री माता जी को यहाँ से सुनना पड़ता है। श्री माता जी बोलते हैं सहस्त्रार्थ से सुनो हमको। तो सहस्त्रार्थ से सुनने के लिए हमको अटेंशन सहस्त्रार्थ से ऊपर रखना पड़ता है, बिंदु में रखना पड़ता है। क्यों? बिंदु इज द पॉइंट, डाउट लेस अवेयरनेस। जब तक आप अर्थ बिंदु में है तो डाउटफुल अवेयरनेस, बिंदु में डाउटलेस अवेयरनेस, आप वहां एस्टेब्लिश हो जाए। डाउटफुल से आप फिर डाउटलेस में एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो फिर आपको वहां से सारा आएगा, ऊपर से आ रहा है, और फिर आप वलय में चले जाओ। वहां होता है गॉडली रियलाइजेशन। वो हमने आपको भेजा है ना एक, उसमें श्री माता जी ने कहा है गॉड रियलाइजेशन, हाँ। वो है आपके वलय के अंदर। ओके, बोला इधर। हाँ, और जब आप प्रदक्षिणा को टच करेंगे, हाँ, और प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा को टच करते हैं, ये धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है, ये पूरी पाइपलाइन की तरह ऐसा जाता है। जो वो एंड में वो प्रदक्षिणा आता है, वो
ओपन है ऐसा, हम्म, तब आप एब्सोल्यूट रियलाइजेशन, हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको ये स्पीच कहीं मिल जाए। ये भी मेरा ख्याल श्री माता जी ने डॉलिस हिल में ही कहा था हाँ, कि ये 4 स्टेज, जब उन्होंने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया में कहा है, यू हैव टू मेडिटेट अपर लेवल, ऐसा हाथ करके बताया है, तो वीडियो में है। मगर हाँ, ये बताया था कि आप ये 4 स्टेज में आपको थ्रू होना पड़ेगा, एंड देन यू कैन क्लेम आई एम ए सहजयोगी। तो ये बात इसमें लिखी है, सहज ब्रह्म विद्या। एक अग्रवाल करके 2 लेडीज ने मुंबई में, इन्होंने सहज ब्रह्म विद्या के 2 पुस्तक लिखी है, यानी कि श्री माता जी के सारे लेक्चर्स को उसमें उन्होंने कंपाइल किया है। उसमें भी ये कभी सहज ब्रह्म, सहज ब्रह्म विद्या अभी प्रिंट से आउट है, क्योंकि इन्फोसिस बंद हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं कोशिश करूंगी किससे, क्योंकि ये हम बोलते हैं, उसमें भी ये बात लिखी है, उसमें 14 पॉइंट्स लिखे हैं। 14 पॉइंट्स में अगर जब 14th पॉइंट में आप आते हैं, तब आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कोई डिजायर नहीं रहती, कोई टेम्पटेशन नहीं रहता, आप कंप्लीटली समझ जाओगे व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ एंड व्हाट इज माय जॉब, मुझे किस जॉब के लिए यहाँ लाया गया है, और मेरा ये काम करना ही है, बिकॉज आई एम ए इंस्ट्रूमेंट। सही है, और जब आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, तो ये जो मंडेन लाइफ का जो बॉडी के अंदर का ईगो, सुपर ईगो, ये मेरा इमोशंस, ये मेरा एवरीथिंग न्यूट्रल हो जाता है। यू बिहेव लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन, you talk like a normal human, but you are not connected with that normal thing, you are yes, beyond। तो जब ये आप जो, हाँ बोलिए, तो आप जब बियॉन्ड हो जाते हैं, तब एब्सोल्यूट में चले जाते हैं, हाँ, हाँ, और दैट इज द कनेक्शन, फाइनल कनेक्शन। सही है आंटी, बहुत बहुत अच्छा वो है आपने। माता जी के, जी, श्री माता जी की कृपा नहीं, से। आप अपनी माता जी को ये स्वरूप में नहीं जानोगे, हाँ, यही स्वरूप है, यही चैनल है। वो जो हाँ, धन्वंतरी है, वो चैनल नहीं है। वो अच्छा, जो धन्वंतरी है, वो वर्किंग है आपकी सिस्टम के ऊपर वर्क करने के लिए। धन्वंतरी यानी कि डॉक्टर है वो, जी, जी, तो आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो डॉक्टर का स्वरूप है, वो महामाया है। मगर हाँ, मेडिटेशन मस्ट बी डन विद दिस स्वरूप, एंड दिस इज द चैनल हु कैन टेक यू अल्टीमेट। तो दिस इज द निर्भय फोटो ना, निर्भय, निर्मल स्वरूप, निर्मल स्वरूप, ओके, निर्मल स्वरूप बोलते हैं इसको। और श्री माता जी ने स्वयं कहा है कि आपको ध्यान करना है तो मेरे निर्मल स्वरूप पे ही करना। हाँ, 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 अब जब निर्मल स्वरूप पे ध्यान करोगे, यू विल शूट अप, अच्छा, वेरी नाइस, चैनलाइज हो जाएंगे। हाँ, हाँ, और बार बार कुंडलिनी को उठाना, कुछ भी करते हैं बार बार कुंडलिनी को उठाओ, ये भी आपकी सुषुम्ना को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। हम्म, जब आप कुंडलिनी उठाते हैं, वो मात्र सुषुम्ना में पेनिट्रेट होती है, वो ईड़ा पिंगला में नहीं जाती। नहीं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में घर पे आप काम कर रहे हैं या दफ्तर में काम हाँ कर रहे हैं, चित से ही बिना कुंडलिनी बंधन उठाए बस अपने आप कर लिया। हाँ, बस बस कर लो, ये कर लो। फिर वाह, धीरे वाह, वाह, धीरे वो जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल भी वो खुल जाएगी। हाँ, धीरे धीरे आप फील करेंगे आपकी बैक में ठंडक ऐसे स्प्रेड हो रही है। पहले सीधे आएगी कि सीधे एक पाइपलाइन ठंडी ठंडी हो गई है, मतलब वो कंप्लीट हो गई, सारे चक्र उसके साथ कनेक्टेड हो गए। उसके बाद आपकी पीठ में वो स्पाइन तो वही है, वो स्प्रेड नहीं होती, उसके अंदर सुषुम्ना के वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं, तो वो तो
ऐसे करके पूरी पीठ आपकी ठंडक हो जाती है। वर्टिकल, है। हॉरिजॉन्टल, ये दोनों भी तरीके। किसी ने बताया है कि यू हैव टू वर्क वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ टू एस्टेब्लिश Yes, चैनल। yes, that And is right. सुषुम्ना is the main channel, जहां Yes. जाके आप एकदम न्यूट्रलाइज होके बैलेंस में आ जाते हैं। हाँ। फिर आपका बोलना फिरना करना कोई भी कुछ भी करोगे एक बैलेंस में रहता है। आप एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे, हाँ, आप सैड नहीं, आप एकदम सैड भी नहीं हो जाएंगे। पता है ये कुछ होता है, कोई रोने लगता है, यानी कि वो लेफ्ट साइड ज्यादा स्ट्रांग है, और कोई एक्साइटमेंट बहुत हो जाता है, हम यानी कि जंप लगते हैं, ये हुआ ये, वो राइट साइड का एक्सेलरेशन है। तो अभी लेफ्ट यहाँ चला जाता है, राइट यहाँ चला जाता है, तो आप यहाँ फंस जाते हैं। हाँ, अगर ये दोनों एस्टेब्लिश हो गए तो आइदर आप ईगो या सुपर ईगो में फंस गए। हमको ये ध्यान रखना है, सबसे सटल से सटल दुश्मन हमारे अंदर हमारा ईगो एंड सुपर ईगो। श्री माता जी बोलते हैं सबको हटा पाएंगे, बड़े बड़े राक्षस को आप हटा पाएंगे, मगर आपके अंदर ये जो सटलटी है ना, इसको हटाना नामुमकिन है, क्योंकि उनका एक, हम बोलते हैं लो लेवल पे उनका फंक्शन है। अभी ईगो सुपर ईगो नहीं है, मगर प्राइड है। हमारे लाइफ में एक प्राइड होता है। Right. अगर ये दोनों सब ये फ्लैट हो गए तो प्राइड नहीं रहेगा। हम नहीं बोलते इसको बेशर्म है, इसको शर्म नहीं आती, इसको बीच स्वाभिमान, कर दिया। स्वाभिमान, हाँ, हाँ, स्वाभिमान का कंट्रोल हाँ, नहीं, क्योंकि यहाँ से ये लाइन जुड़ती है तो हमसा चक्र का मैसेज यहाँ जाता है, और ये आपको मैसेज देता है कि भाई अभी स्वाभिमान जगाओ, प्राइड रखो, तो वो वहां से थोड़ा सही कम है। देता है। तो हमको इस चैनल को बढ़ाएंगे तो ये नीचे ही रहेगा। और श्री माता जी बोलते हैं फिर ये दोनों बलून ऐसे खुलते हैं, वो धीरे धीरे फ्लैट होके आगे चक्र से, यहाँ हमसा चक्र से होके वो आपके विशुद्धि में जाके यहाँ वो चले जाएंगे, वो बलून की तरफ फ्लैट होते। तो बोलते हैं यहाँ चले जाएंगे ना तो आप पार हो गए कि कभी भी वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ नैरो पैसेज है, कभी भी आपका ईगो सुपर ईगो नहीं आएगा। श्री माता जी की कही वाह, हुई। वाह। आंटी, ये जैसे पिछली बार आपने हम लोग को बताया था ध्यान करने का, जी जिसमें हम लोग उठा रहे थे बाईं तरफ 7 बार, फिर हाँ कुंडलिनी उठाई 7, फिर दाईं जी तरफ उठाया बैलेंस करने के लिए, फिर हाँ उसके बाद कुंडलिनी फिर उठाई 7 बार, और उसके हम्म, बाद कैसे आदि कुंडलिनी माँ ऊपर गए और ऊपर के 4 चक्रों में अर्ध हाँ, बिंदु, बिंदु, वलय, प्रदक्षिणा, वहां चित थोड़ी देर था, फिर कैसे वो चैतन्य प्रदक्षिणा से वलय, वलय से बिंदु, बिंदु से अर्ध बिल्कुल, बिंदु, फिर नीचे आया। हाँ अम, सहस्त्र या विशुद्धि अनाहत। तो विशुद्धि से हम लोग ले गए थे ललिता चक्र, हाँ फिर ललिता विशुद्धि चक्र, फिर वापस, श्री, और फिर श्री चक्र से वापस, और फिर फिर हृदय, है ना? हाँ, हाँ, ये स्टार्टिंग में सारा एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पूरा एक्सरसाइज आपको चाहिए। ये एक्सरसाइज है, ये मेडिटेशन नहीं है। नहीं, ये तो तैयारी है ध्यान के लिए। हाँ ये क्या है, एक्सरसाइज ऑफ योर अटेंशन, आपका चित्त का हाँ, एक्सरसाइज है, जिम है, हम इसको जिम बोलते हैं। तो ये जो जिम है वो चक्रों पे जाके अपना जिम कर लेता है। सही है, सही, जो उनको मिलने वाला है मटेरियल, वो चक्र से आपके अटेंशन में वो मटेरियल चला जाता है। सही है। तो तो, अब हम, तो ये जिम है। ये जिम हमने कर लिया, हाँ ध्यान चित्त आ गया अपना सही संतुलित रूप में, बिल्कुल। इसके बाद अगला कदम क्या है इस विषय में इस, बताएंगे प्लीज? इसका बाद आपका नॉर्मल ध्यान के अंदर जुड़ने के लिए, हाँ, जैसे अभी जूम में जुड़ने के लिए एक वर्ड आपने नंबर दिया, जी, पासवर्ड, फिर पासवर्ड दिया, हाँ, वो प्रोसेस हमने किया। तो अभी नॉर्मल
चित्त को शांत करके जितने मिनट आप बैठ सको उसके लिए नॉर्मल है, अनाहत से अटेंशन ले लो, फिर धीरे धीरे उसमें टाइम बढ़ेगा। पूरा अभी ये जो ध्यान है, लोग क्या करते हैं, ये जानते नहीं कि ये कहाँ लगाना है। सारे चक्र आपके स्पाइन के ऊपर है, तो अगर मैंने यहाँ लगाया तो काम नहीं होने वाला। अच्छा, आई हैव टू फील माई स्पाइन। अब पीछे से स्पाइन को जल्दी फील कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपका चित्त स्पाइन के अंदर अनाहत चक्र पे ले जाइए। तो जो दोनों फेफड़े के नीचे जो हड्डी है, डायफ्राम, सैक्रम बोल ना, सैक्रम नहीं, उसको कुछ बोलते हैं, इतनी सी हड्डी है, आप पूरा अटेंशन वहां लो, वो आपके स्पाइन के साथ जुड़ी है, पूरा अटेंशन वहां रखिए और जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठो। अभी आपको वहां कुछ फील होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप वहां से उसी स्पाइन के ऊपर से, जैसे यू आर ट्रैवलिंग इन योर स्पाइन, आप स्पाइन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर आप विशुद्धि में आ जाइए। और यहाँ प्रक्रिया है, आपकी जो टंग है उसको ऊपर उठा दो, मगर तालू से टच नहीं करना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको खेचरी बोलते हैं। श्री माता जी ने इसको दूसरी तरीके से बताया है, मगर वो अब आप नहीं कर पाएंगे, वो लेटर ऑन प्रैक्टिस के बाद कर पाएंगे। तो ऐसा रखो, तो आपके कान के साइड से जो ग्लैंड्स हैं वहां से सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। जब सलाइवा एक्टिवेट हो गया, उसको श्री माता जी अमृत बोलती हैं। और ये जो अमृत है वो फिर वहां से टपकता टपकता आना हाथ ऊपर जाएगा और आपकी विशुद्धि को भी ठीक करेगा। बहुत सारे लोगों को जो थायराइड है वो उसका ये दवा है। अब धीरे से आज्ञा चक्र पे लेना। अब आज्ञा चक्र ये जो फ्रंट में है ये हमारा राइट है, राइट साइड का है, और ये बैक में है वो आपका लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट अगर आप यहाँ रखोगे तो ओनली राइट काम करेगा, और पीछे रखोगे तो लेफ्ट, तो आइदर में फंस जाओगे। तो एक्चुअली आपका जो आज्ञा चक्र लेफ्ट राइट लेफ्ट यहाँ बीच में है। यहाँ जो सहस्त्रार है उसके अंदर एक ऐसा कटोरी जैसा है जहाँ लेटर आप फील करेंगे ठंडा 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 पानी जैसा लिक्विड है। उसको मैं मान सरोवर बोलती हूँ। अच्छा, क्योंकि वो जो टपकने फिर टपकता है ना, ये जिह्वा के ऊपर से आपको लगेगा एक एक बूंद आ रही है, वो यहाँ से आता है, वो भी एक्टिवेट करना है। तो ये आपका सहस्त्रार खोपड़ी, उसके नीचे ये है तो वो ऐसा है, और नीचे आपका तालू ऐसा है, ऐसा आएगा। ये आपका तालू है, ये आपका वो है। तो तालू के बीच में आपका आज्ञा चक्र है, मिडल में। तो हाँ, यहाँ के लाइन में तो सीधा वो कनेक्ट हो जाएगा विशुद्धि से आज्ञा चक्र। अभी विशुद्धि से आज्ञा चक्र में कोई लाइन नहीं है। अच्छा, हड्डी तो यहाँ सर्वाइकल जो हड्डी है ये यहाँ ऐसे गोल समाप्त, उसके ऊपर तो ये नाक का हमसा चक्र, इसीलिए हमसा चक्र पे अलग ध्यान देना पड़ता है। जब डिसेंडिंग करते हैं आज्ञा चक्र से आप हमसा चक्र में आएंगे तो ऐसे यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से वापस हमसा चक्र से आज्ञा में जाके फिर विशुद्धि आना है। फिर से बताइए इसको प्लीज। जैसे हम, चलो आज्ञा चक्र पे ले लो, आज्ञा चक्र हो गया मिडल में। अब सहस्त्रार पे आ जाओ, सहस्त्रार पे आ गए,
फिर वहां आपको थोड़ा हाँ। फील होगा, थोड़ा समय दे दो, फिर आपको डिस्कम्फर्ट लगता है तो तुरंत अर्ध बिंदु, हम्म। बिंदु, वलय, प्रदक्षिणा। अब हम विराट नहीं जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, कभी हम बताएंगे उसका भी। फिर ठीक है। आप थोड़ी देर रुक गए, जैसे आपको लगता है कोई मैग्नेट में रुका है, फिर वहां से थोड़ा हिलना शुरू हो जाएगा, दिमाग में कुछ आए तुरंत नीचे आ जाइए, प्रदक्षिणा से वलय, फिर थोड़ी देर रुको, फिर बिंदु, फिर अर्ध बिंदु, फिर आज्ञा, सहस्त्रार, सहस्त्रार से आज्ञा, इसको याद करो, आज्ञा से हमसा चक्र, तो ये आज्ञा है, यहाँ हमसा चक्र है दोनों आंखों के बीच में, यहाँ लीजिए, यहाँ से वापस आप जाइए आज्ञा। इसके लिए ये भी कर सकते हैं, ये दो उंगलियां हैं ना, ऐसे नहीं, चिमटा नहीं, ऐसे ऐसे क्लोज की तरह इसको पकड़ना है और पूरा अटेंशन वहां दीजिए। अब आपकी दोनों उंगलियों के छोरों पे आपको पल्सेशन आएंगे, कभी एक में आता है, कभी एक में नहीं आता, आपको वेट करना है, जब दोनों में आता है तो भी वेट करना है, फिर दोनों पल्सेशन जैसे एक ही पल्सेशन है। अब आपका चित ले जाइए आज्ञा पे और चेक करिए आप निर्विचार हैं, कुछ सोचने की कोशिश करिए, ट्राई टू थिंक। आप नहीं सोच सकते, छोड़ दीजिए। जब आपका थॉट बंद हो जाता है छोड़ दीजिए। श्री माता जी ने ये कैक्स्टन में सिखाया था और बोला था, अच्छा। शॉर्टेस्ट वे टू डू मेडिटेशन, ये थॉटलेस वे। थॉटलेस मेडिटेशन शॉर्ट फॉर्म में है, मगर ये क्या है, तो ये लंबा नहीं रहता, ये आपको 5-10 मिनट्स देता है। तो श्री माता जी ने कहा कि कैसे यूटिलाइज किया जाए, जैसे आप ऑफिस में बैठे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, घर का भी हो सकता है, बड़े पद पे बैठे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकर का है, लिया गलत हुआ तो गए, सक्सेस हुआ तो बोला सामूहिक है, तब ये कर सकते हैं। दूसरा, एग्जाम, जब एग्जाम पेपर देना है, आप कंफ्यूज हो गए हाँ। ये प्रश्न पेपर में क्वेश्चन आया, मैं कैसे आंसर को आता है, मगर दिमाग खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, तब आपको क्या करना है, आपको ये 10 सेकंड भी नहीं लगते, आप इसका प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, और आपके काम में इसका विटनेसिंग पावर और कैसे पावर बढ़ता है आप एक्सपीरियंस कर लेना। आप बच्चों को सिखा दे कि ऐसे कर लेना है, और फिर अटेंशन यहाँ रखना है, और जब वो ब्लैंक हो जाता है, थॉटलेस हो जाते हैं, ट्राई टू थिंक। आप नहीं थिंक कर सकते, मतलब एक्टिवेट हो गए हैं, और उसके बाद उस प्रश्न पेपर को आप अटेंड करिए, तुरंत आपको अरे ये तो आता है मुझे, क्यों, अपने न्यूट्रल हो गए, वो घबरा गए तो आप थोड़े लेफ्ट में चले गए, आप ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो राइट में चले गए, हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं और घबरा करना भी, हम न्यूट्रल में आ जाएंगे, एग्जैक्टली आपको क्या देना है, आपको साइन करनी है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसको श्री माता जी ने बताया था, इसको ऐसे यूटिलाइज करना,
और कभी भी बहुत थॉट्स आते, कई लोग बोलते हैं कि इतने थॉट्स आते हैं, कभी हो सकता है क्योंकि आप चूल्हे के गैस को करके काम करके आए, बहुत धूप में तो लीवर ने गर्मी तो पकड़ी है ना, हमारे लीवर जल्दी पकड़ता है सही है। क्योंकि उसको ठंडे में रहने की आदत है। तो क्या है, आप बैठ जाइए, हाथ पांव धो के बैठ जाइए और ये कर दीजिए और थॉट्स को स्लो डाउन कर दीजिए। फॉर सेकेंड्स आपके थॉट्स रुक जाएंगे। दिस विल गिव यू 5 मिनट्स बिगिनिंग में, फिर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स आप थॉटलेस, और ये करते करते आप थॉटलेस अवेयरनेस में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। वाह वाह। फिर आ गया सामसा चक्र, फिर वापस आ गया, फिर आज्ञा चक्र से सीधे विशुद्धि चक्र पे। अभी कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 8 पेटल्स बंद हो जाती है, ओहो। तो 8 पेटल्स में वो एनर्जी जाएगी, 8 में नहीं जाएगी। ये वाइटल है हमारी, जो फ्रंट 8 पेटल यहाँ से यहाँ तक की 8 पेटल्स वाइटल फोर्स है, इसलिए हमेशा ऐसा बैठना है, चिन को ऊपर रखना है, ये पूरा एरिया खुला हुआ होना चाहिए। अच्छा। Then you get benefits. अब ये ऊपर है तो पिछला खुला रहेगा। सही है। तो ये ध्यान करने के पोजिशन, छोटी छोटी बात है मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फुल स्टॉप, कोमा, ये सारे है ना ग्रामर, जरूर। और लॉ के हिसाब में जो लीगली है उसमें तो डॉट्स कोमा यही काम कर जाते हैं, उसी पे सही है। केस लड़ा जाता है। तो हमारे छोटे पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना है, और ये सिखाने वाला कोई नहीं है। तो ये विशुद्धि पूरा खुलना होना चाहिए। इस वक्त भी आप उसको कर सकते हैं, खेचरी, ये टंग को ऊपर रखने की आदत डाल दीजिए, जब थक जाती है थोड़ा हिला देना अंदर, ये बहुत आपको डीप में ले जाएगा। ये यौगिक क्रिया में है, ये बड़े बड़े महामुनि सिद्ध पुरुष ये खेचरी करते हैं, और ये इसके कई प्रकार हैं, तो भूख भी कम लगती है आपको, और आपकी एनर्जी हमेशा ऊपर तक रहती है। और ये विशुद्धि में करके फिर आप अनाहत पे आ जाए। तो हम क्या करें, अनाहत से प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा से अनाहत, सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी उतरेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी उतरेंगे। तो आपको ये आदत आपके अटेंशन को हो जाएगी। सही है। तो आपका अटेंशन को मालूम है कौन से पौड़ी पे पांव रखना है, तो हम हमारे अटेंशन को जिम करवाते हैं, उसको फिट करते हैं। सही है। अटेंशन फिट हो जाएगा, हम सहयोगी बन जाएंगे। और फिर माता जी बोलते हैं, मराठी में बोल रही थी कि सारा खेल चित्त का है, बिल्कुल चित्त का खेल है ये। एक श्रीमाता याद आ रही है, आप जो चित्त बता रहे हैं, श्रीमाता जी ने बोला था चित्त निरोध। हाँ, ये चित्त निरोध यहाँ से होगा, हमसा से होगा। ये जो हमने किया ना, वो चित्त निरोध किया हमने, किया वो सुई में धागा पिरोना, ये किसने कहा है? पतंजलि मुनि ने कहा। जैसे सुई में धागा पिरोता है, वैसे अपने चित्त को पिरो दो तो आप पहुंच जाएंगे। तो दोनों होल यहाँ है, और सुई का जो हम बोलते हैं पीछे धागा पिरोने का जो जगह, ये यहाँ है। देखो यहाँ दोनों तरफ आप उस स्केलेटन की खोपड़ी देखना, उसमें यहाँ हो तो यहाँ हो ना, तो इसमें धागा, कुंडलिनी का धागा इसमें पिरो दिया तो ऊपर। मगर ये डिसेंडिंग में करना, असेंडिंग में ये बहुत काम नहीं देता, क्योंकि ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो पहले ये तो जो थ्रेड लाके, थ्रेड को वापस लाके उसमें पिरो के नीचे ले गए। आप एक पुरानी यौगिक कुंडलिनियों का स्ट्रक्चर बहुत जगह में बताया है, उसको हमसा चक्र बोलते हैं। हंस,
हंस कैसा होता है, हंस को दूध और पानी में फर्क है, हंस को मोती और दाने में फर्क है। तो विवेक बुद्धि यहाँ से जागृत होती है। तो आप बोले कि माता बताते हैं चक्रों में एक डिजाइन कि हंस की ऐसी चोंच होती है, ऐसी चोंच होती है, तो यहाँ से एक ऐसा करके वो चोंच से एक जगह में आता है, ऐसे पकड़ते हैं, यानी कि ऊपर जाके नीचे आके ऐसे गर्दन आके ऐसे पकड़ते हैं। तो हम जब आप वापस आओ तब इसको हमसा चक्र को लेना। ओके, आप 2-4 लोग जो आपके साथ बैठे हैं उनको बिठा के प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप इसको अनुभूति कर पाओगे। जब आपको अनुभूति हो जाएगी, आपको पूर्ण विश्वास आ जाएगा कि नो, दिस इज द सिस्टम, इट वर्क्स। अभी हमने कितने लोगों को सिखाया है और सब पे वर्क हो रहा है। अब वो ही लोग दूसरों को सिखा रहे हैं, उनका भी वर्क हो रहा है। अभी वो कलकत्ता से आया था कॉल कि वो ये सारे नए सहयोगी हैं, वो इतने आपने जो सिखाया वो ही सिखाया, वो इतने डीप हो चुके हैं जो पुराने सहयोगी इतने सालों से वो भी इतना नहीं पहुंचे हैं। अभी आपका नाम सुनते ही इनको वाइब्रेशन आता है। तो वो लोग जो बोलते हैं कि जिसका नाम सुनते इतना वाइब्रेशन है, हमको इनको मिलना है। तो आप 1 वीक के लिए भी आ जाइए। हमने बोला जरूर, प्रॉमिस करें, हम आएंगे, जरूर आएंगे और सबको मिलेंगे। हमको भी खुशी होती है ना कि श्री माता जी बताती है कि देखा, मेरा काम, मेरा इंस्ट्रूमेंट बनने से मैं आप लोगों को कितनी खुशी दे रही हूँ। बहुत आनंद आता है। कोई कहता हाँ ये वर्क हो गया। हाँ बिल्कुल। अभी वो सॉल्ट का बैग बताया, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्ट का पिलो, और वो नॉन साजी के ऊपर काम हो गया तो क्या साजी पे काम नहीं होगा? तो सेटिस्फेक्शन कि श्री माता जी ने क्या सिखाया हमको। हम छोटी बात है, मगर ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर पाते। श्री माता जी की कृपा कितनी है कि हम लोग, पूर्ण कृपा है। बोलते हैं ना, मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैंने सब कुछ आपको अंदर दे दिया है, आप कार्य करो, मैं आपके पीछे, मेरी शक्ति काम कर रही है। आप नहीं कर रहे, शक्ति काम कर रही है। आप जब काम करोगे तो मैं आपके साथ में खड़ी रहूंगी। और कई लोगों को ये भी अनुभूति है कि श्री माता जी है साथ में। कई लोगों ने देखा भी है कि श्री माता जी खड़ी है वहां और ये कार्य होता है। अभी आपका ऑरा वैसे फैल रहा है, देख रहे हैं, पूरा फैल चुका है। सब श्री माता जी की कृपा है ना, इस तरीके से श्री माता जी बनी रहे, श्री माता जी की अनंत कृपा बनी रहे हम सब पे। जो इस रास्ते पे चलेगा वो पार हो जाएगा। मगर अटका तो खुद में अटक जाता है, कोई बाहरी उपकरणों से नहीं अटक, वो खुद के मेंटालिटी, और हम बोलते हैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाते, या अपनी जड़ता से, अपनी हैबिट से वो अटक जाते हैं। मगर इसको पार कर लिया ना तो हैबिट, जड़ता सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे भी लोग हमको फोन करके बताते थे कि आज हम सोचते हम क्या थे और क्या बन गए। सही है, बादशाह हो गए देखते देखते। सही। एक है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ऑफिसर है, या तावीज वावीज बांधा था यहाँ यहाँ कोई तांत्रिक के। हमने बोला अभी निकालो हमारे सामने। वो बोलता नहीं नहीं, मैं कुछ हो जाएगा। मैंने बोला हम बैठे हैं ना, कुछ भी नहीं होगा, निकालो। निकलवाया, पूरा निकलवा के आया, एक पानी का बाल्टी लाए और डालो उसमें, सारा डलवाया। फिर हमने बोला उठाओ कुंडली में, उठाया। आज वो 2 साल के अंदर ऐसा सहयोगी, वो गांव में, वो क्योंकि फॉरेस्ट है, छोटे छोटे में जाके वो रियलाइजेशन देता है बच्चों को, स्कूलों में। हमने बोला इतना नहीं चलेगा रियलाइजेशन, ध्यान
अभी जाके ध्यान करवाते हैं, बच्चे अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो आदिवासी के बच्चे हैं, कि हमको वाह, ठंडा महसूस होता है, हमको बहुत आनंद होता है, श्री माता जी की परम कृपा हम पे बनी रही है। अब उनको कौन सा ये सिखाया? कोई मंत्र नहीं आता, एक ही महामंत्र। और वो जब हमको मिला था तब कैसा था और अब कैसा है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि वो सेम आदमी है जो तांत्रिक ने क्या हाल किया था, और सहज योग ने उसको उसमें से निकाल के एकदम चमकता चेहरा उसका पूरे आज्ञा चक्र में, और रात दिन ये कार्य कर रहे हैं। और कई अपने सारे ये बहुत अच्छा बताया आंटी, और ये सुन के और भी ज्यादा हर्ष हो रहा है कि माने आदिवासी बच्चे, स्कूल जहाँ आदिवासी बोल रहे हैं, जहाँ लोग नॉर्मली जाते नहीं है क्योंकि वो जाते नहीं है। भीषण वो हाँ, शिवरात्रि का बहुत बड़ा पोस्टर के वो शुरू कैसे किया, क्योंकि उसके भी कर्म को धोना था ना। हमने बोला जो श्री माता जी करेंगे, तो वो क्या करता था, श्री माता जी के पोस्टर दोनों डोरी से बांध के गले में पहन के एक माइक लेके गांव गांव के हाई स्ट्रीट पे, जो जहाँ है ना, गांव गांव में घूमता था। योग आज का महायोग, अपने बेटे को भी ले रहा है, अपना वीडियो बना रहा है, बस ये रात दिन। फिर बोलता है कोई नहीं सुनता। मैंने बोला एक दिन सुनेंगे, अभी तो शुरुआत है। एक साल श्री माता जी ने उसको वो एक्सरसाइज करवाई है, और बिना रुके उसने किया है। एक साल के बाद श्री माता जी ने उसको स्कूलों में भेजना, फिर वो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, उनको बिठा के रियलाइजेशन देना, उन सबको वाइब्रेशन आना शुरू हो गया। तो उसकी हिम्मत बढ़ी, स्कूलों में गया, स्कूलों में बच्चों को आना शुरू हुआ। अभी वो गांव गांव में, स्कूलों में, हर जगह जा, अभी कुंभ में गया, यहाँ गया, वहां गया, लेके वो घूम रहा है सबको, जितने तैयार उससे जुड़ रहे हैं लोग। मैं आपको, उसका फोटो है मेरे पास, मैं आपको भेजूंगी। उससे लिखा है क्या था और क्या हो गया। वाह आंटी, एक चीज जो आई इनके अनुभव से, जैसे ये बता रहे थे कि तांत्रिक और ताबीज वगैरह ना, हाँ, जैसे कि भारत देश में तो तंत्र बहुत है, माने काला बहुत जादू, यहाँ पे भी विच क्राफ्ट है, वगैरह हर है। जगह ऐसे है, कहीं वुडू। अरे ब्राजील में इससे भी ज्यादा है। हाँ, तो ब्राजील में कैसे इन बहुत सब से है। कैसे बचे साउथ रहें, साउथ और अगर में बहुत है, जहाँ हाँ, हमारी पहुंच भी नहीं साउथ होती। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी हम, श्री माता जी ने वहां जाकर भी हमसे काम करवाया। तो इस सब से कैसे, सिर्फ जो श्रीमाता जी बताते हैं कुंडलिनी बंधन, उतना सुरक्षा कवच अपना काफी है? इतना काफी है। और डेली श्री माता जी को जोड़ने के लिए हमें पाठ, हम सीधे नहीं बैठेंगे। मैं को 5 मिनट बैठ जाओ, आप नहीं बैठ, कुछ याद आएगा, ये काम है याद। हाँ, मैं बोलूंगी आप यहाँ बैठ के अर्गला स्तोत्र पढ़ लो और देवी कवच पढ़ लो। अब बोलते इतना ही ना, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट यहाँ बैठ के पढ़ लो, तो वो आपको आदत डालेगी। और देवी कवच है वो है, उसमें जो जो है वो आपके कनेक्शन में है, आपके शरीर का है। और अर्गला स्तोत्र है, आपको मांगना नहीं आता क्या मांगू। तो रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो देही, मुझे कुछ नहीं आता, आपने महिषासुर को मारा, रक्त बीज को मारा, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, द्विषो देही, मतलब कि आपके अंदर जो कैरेक्टर है वैसा स्ट्रेंथ मुझे दीजिए। आप तो इतनी बड़ी हैं, आप इतनी महान शक्ति है, कृपा करके मुझे भी ये दीजिए। तो श्री माता जी ने कहा कि आप अर्गला स्तोत्र पढ़िए, मुझे बहुत पसंद है। ये हमको बोला था कैक्शन हॉल में, कैक्शन हॉल नहीं, पोर्चेस्टर, पोर्चेस्टर हॉल में बोला था। तब से हम ढूंढे, फिर अब बाहर मिले, हमको मिल गए, हम डेली पढ़ते हैं। क्यों? हमको मांगना नहीं आता, तो क्या मांगे, ये बुद्धि क्या मांगेगी, निरर्थक बातों में फंस जाएगी। तो जो कहा वो ही पढ़ो। फिर हमने बोला देखो श्री माता जी ने मुझे कितना अच्छा बता दिया कि बेटा ये पढ़ ले, तू मेरे सामने पढ़ेगी, मैं सब दूंगी। तो ये आपको सही। पढ़ने की प्रैक्टिस देता है, हाँ, और एनर्जी भी देता है। आपकी कुंडलिनी की एनर्जी के साथ वो एनर्जी काम करना शुरू कर देती है।
तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है। आप पहले आपके अंदर समा जाते हैं, अपने आप में आप विस्तृत हो जाते हैं, फिर आप बाहर बाहर जब कोई भी कार्य करते हैं तो अंदर का स्ट्रेंथ बाहर निकल के काम करता है। तो यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंट, यू आर सही। नॉट द डूअर, यू आर नॉट द एंजॉयर। अल्टीमेट शी श्रीमती डूअर, शी इज द एंजॉयर। और वो जब श्री माता जी एंजॉय करती है तो आपके हार्ट के अंदर ऐसा स्पंदन होता है, जॉय, जॉयफुल। प्रफुल्ल, तो आप समझ जाते हैं कि भाई आनंद यही है प्रफुल्लित। प्रसाद, आपको प्रसाद ही मिलते हैं। सही है आंटी। बहुत बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत श्रीमाता जी की कृपा से कि इतना अच्छा सेशन आपने हम लोगों के साथ लिया और अपने इतने अनुभव श्रीमाता जी के साथ कैक्सटन हॉल में और डॉलिस हिल आश्रम, पोचेस्टर हॉल, और हाँ अपना जो यहाँ समय है, क्योंकि इंग्लैंड अभी हम लोगों ने पिछले संडे शिवरात्रि पूजा की, हाँ जी। बहुत आनंद आया। और एक विशेष भूमि है जैसे बता रहे थे श्रीमाता जी की। इंग्लैंड आ, बहुत हाँ विशेष है, शिव जी की भूमि है। ये श्री बिल्कुल। बताती थी, इंग्लैंड इज अ शिवाज लैंड। एंड Exactly. मैं जब आती हूँ, ये मेरा ससुराल है, दिस हाँ इज माय in-laws house. So इमेजिन। I have to observe all the protocols here. ज्यादातर इंग्लैंड में श्री माता जी बोलते हैं मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल्स रखने पड़ते हैं। ये श्री माने माता, श्रीमाता जी क्या प्रोटोकॉल रखते होंगे ना आंटी? ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे शी नहीं। आदि, लेकिन फॉर हर टू से दिस काश। मगर वो बोलते हैं, ये मेरा ससुराल है। और जो माउंट शैलियन है वहाँ पर्थ शहर में, हाँ वो वहां बोले ये गुफा है, तो बोलते हैं वो शिव जी का वाल्व है, हार्ट का। तो कई सहयोगी लंदन से जाते हैं वहां पूजा करने, माउंट शैलियन के बाहर वो। हाँ वेल्स में, हाँ ना, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। पर्थ शहर में जाते हैं वो यंगस्टर्स। पर्थ, माउंट माउंट शैलियन, तो बहुत जाते हैं। शालियन, ओके। हाँ, बहुत लोग जाते हैं वहां, सहयोगी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुना है हमने, लेकिन ये नाम नहीं सुना था, इससे हम वाकिफ हाँ नहीं थे और इतने सालों से। वाह वाह, ब्रिलियंट। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और सबसे बड़ा तो कृपा श्री माता जी की हम सब पर बनी रहे और हम सबका आध्यात्मिक उत्थान बिल्कुल। हो उनकी कृपा में और उनकी गोद में। जय श्री माता जी आंटी, थैंक जय यू। श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता जी। जय श्री